Hello students, how are you? Good evening to everyone. I'm all right, feeling pretty good. Want to know about you people, how you all are. That's nice to hear when you people say that super duper blessed. So, what you did yesterday in my class, what you did? I said what you did in the yesterday's class. Present indefinite tense. So, have you understood? क्या आप लोगों को समझ आ गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? कोई ऐसा हो जिसको कोई प्रॉब्लम आई हो या ना समझ आया हो? Any student? Any student with any problem in the present indefinite tense? I'm asking you, any doubt in the present indefinite tense? No? Nobody has any doubt? That's pretty good to hear again that you people don't have any doubt. Now, I want you to recapitulate all the formulas related to the present indefinite tense in the comment section, but the only thing is that you are going to write a simple like 3-4 lines collectively. ये नहीं है एक एक. Oh, thank you so much, Jyotika. I would love to be the part over there. Are you inviting everyone or just me? Everyone. That's very nice. So please everyone, this is our, you can say, cordial invitation from the Khambra Church that you people are invited over there on 31st December night. Every facility is over there. Whosoever feels like they want to be the part of that or it is convenient for them, do visit that church. Yeah. Okay, now my question is that let's recapitulate it once. I want that everyone should drop a message in the comment section regarding the present indefinite tense. Like, what is a simple formula? Where S or ES is used? Where if we have to make a negative sentence, then what is the grammatical rule? And if we have to make the interrogative sentence, then what is the rule? And if we have to make negative interrogative sentences, then also there is a rule. So I want you to type 4 rules in one paragraph and then submit it. Do it quickly. Very nice, Jyotika. Yeah, we all can meet in that way, na? It's a good thing.
Now, so this is the cordial invitation from the Khambra church, and you people should really be the part of that, and even should meet each other. And if I would be there, I will also drop a message in the group that I am there and I would love to meet every of my student. Now, please, everyone, just within you can say 2 3 minutes, you should be having the grammatical rule in the comment section. Everyone, I am having 30 student online, so 30 messages should be there. Please do it quickly. I have given you the assignment. Write the grammatical rule for simple present tense, simple present negative sentence, simple present interrogative, and present interrogate negative interrogative. क्विकली एवरीवन, मेरे को तो कोई नहीं दिख रहा जो टाइपिंग आ रहा हो जिसका स्टेटस में भी दिस पर्सन इज टाइपिंग. बट यू शुड हैव गॉन थ्रू द रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग देख लेते हैं आप लोग. रिकॉर्डिंग किस लिए होती है? इसीलिए होती है ना कि हम लोग देखें. नहीं देखी है आज भी तो कल तक देख के रखना और मुझे पर्सनली मैसेज करके. बट ओवर हियर इन द स्टोरेज स्पेस इट इज देयर. ज्योति का भी ठीक है. हर सिमरनप्रीत भी ठीक है. बाकियों को क्या है अभी? बाकी नहीं टाइप करेंगे. आस्क रवि सर वंस, ही विल लेट यू नो. वेरी नाइस विक्टर. यस, अदर्स ऑल्सो बी क्विक.
शिवम, हाउ वर्ब का सेकंड फॉर्म इन सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस? ओके, फाइन. Hmm. Okay. Do you know what is past indefinite tense? अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताना हो तो क्या बताओगे? वो काम जो पास्ट में हुआ होगा उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, जबकि वो काम सिर्फ हुआ होगा. जैसे उसने लेटर लिखी थी, है ना? तो उसमें ग्रामेटिकल रूल क्या रहता है? उसमें ग्रामेटिकल रूल रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है. ठीक है. शी रोट अ लेटर, आई प्लेड अ मैच, दे लव्ड कॉफी, दे लव्ड माई प्लेस, दे लव्ड वर्किंग हार्ड, दे लव्ड रनिंग. और बनाओ ही शी इट वी दे यू के साथ सेंटेंसेस. जल्दी जल्दी. Be quick. It seems like that you should be in the class and you are doing pretty well. He drew a beautiful painting. Nice. He wrote a letter. She cooked food. Yes, everyone. They helped each other. I wrote a poem once. She played the football. He went to walk. The gardener watered the plants. She is a beautiful girl. नहीं, ये सेंटेंस नहीं बना. मैं सिंपल पास्ट में बनवा रही हूँ. She finished her work. The rule is subject plus verb का second form plus object. I completed my maths exercise, not I did my maths exercise. सब्जेक्ट लोना ही लोना मत. दैट इज जो बात कर रहा है ना? वो क्या है? आई वी दे यू ही शी इट और नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. साथ में क्या आना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म. दैट इज ऑब्वियसली प्लेड, रिएक्टेड, लाफ्ड, है ना? आई ईटेड बर्गर. आई सैंग अ सॉन्ग. यस. अगर सैंग है वही बता रहा है कि मैंने सॉन्ग गाया था. शी प्लेड इन द वीडियो गेम्स. शी प्लेड इन वीडियो गेम्स. उसने प्ले करा है वीडियो गेम्स में. इट्स रियली आई ईटेड मैम. दैट्स वेरी नाइस. गुड. You should have occasionally outside food also. He played the football. विक्टर ने भी खाया आई एट बर्गर. वो तो कह ही रही है. ही डज द वर्क. नहीं, ये नहीं आएगा. I read book. She ate pizza.
हाँ जी, ईट की फॉर्म एट ही होती। वेरी गुड। She attended the class. Good. He scored a century in the match. Very nice. ओके, आई हैवंट गॉन थ्रू इट। मतलब अपनी तरफ से मैं देखा, बट मैं मिस्टेक रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। ईटेड नहीं होता, एट होता है। आई अटेंडेड द मैथ्स लेक्चर। ज्योतिका, प्लीज नोट if you have written like this. She ate the chicken in the room. I drink mixed veg juice. He played well cricket. He played cricket well. ऐसे आ सकता। He played cricket well. We attended the lecture continuously. I gave rupees 500. I gave 500 rupees to him. रुपीज 500 नहीं आता होता मेरे अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस होता है वो 500 पे होता है। To my village it was dark, but when my friend visited it was a sunny day. Good. India won 3 test match against Australia. Very good. Yesterday I visited my granny. She married him. शुक्र है she married her नहीं लिखा आप लोगों ने। Today we enjoyed the bhangra. Very good. She read the newspaper. जो लेट आए उनको कोई गुड इवनिंग नहीं है। उनको नहीं पता क्लास है। आपको पता है कि 7:15 क्लास होती है, तो यू शुड बी देयर। ओके, लुक आफ्टर योरसेल्फ राधा देन। हेड एक के स्पेलिंग गलत है, एच होता है ACHE। रिचा मैम करेक्टेड माय लास्ट सेंटेंस। वेरी गुड। This is the job of Richa ma'am to correct you at each and every sentence. He getting married. He got married. Getting continuous होता है, तो उसमें वो व्याह करा रही है। उसकी शादी हो गई है। He got married. Drink drank होता है, drank. I drank water. Drink drank drunk होता है, तो drank जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वही लगनी है। अभी मैंने डिड वाला बोला ही नहीं है। Why you are writing the negative sentences? Don't go a step ahead. Please let everyone be over there. She lost her luggage. Oh, that's very bad news. When you lost your luggage, it means you have lost half of your life. Do you people feel the same? फिर लगेज कैरी क्यों करोगे अगर उसमें कुछ हो ना तो?
I attended chemistry lecture. He absorbed the fire of God. किसको झांसा देना है भाई? बड़े खराब बच्चे हैं ये। थीफ तुम्हारे पीछे भाग रहा है, ऐसा कभी हो ही ना। You should be always blessed, and I wish for that every day. ये सेकंड फॉर्म यूज करनी है। सिंपल पास्ट में वी नीड टू यूज द सेकंड फॉर्म। I went to the work at yesterday. I went to the work yesterday. Ma'am scolded him in the last class. मैम ने किसको स्कोल्ड किया बताना? आप तो लाइव होते ही नहीं हो, मतलब ऑफलाइन क्लासेस तो होती नहीं है। अगर ऑफलाइन क्लासेस हो तो कानों से पकड़ के स्कोल्ड करूँ आप लोगों को। सबसे पहले शिवम को। शिवम तुम तो मेरी आंखों में हो, मतलब अगर तुम चर्च पहुंचे और मैं आ गई 31st को तो मिलना जरूर, वहीं पे तुम्हें स्कोल्ड करूंगी। गलत हो जाएगा ना शिवम। तभी तो ज्यादा खींचने हैं। वो रेड हो जाएगा ना। कोई बात नहीं, अगर मैं आती हूँ तो फिर मिलते हैं। हम्म, ठीक है जी। ज्योतिका डेफिनेटली। ओके ओके ओके, अब हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। हमने वहां पे जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए तो हमने कहा यूज होता है डू और डज, और यहाँ पे क्या यूज होता है बताओ? शी डिड नॉट। क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बनाओ नेगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब शुरू हो जाओ। आई डिड नॉट ईट मोर फूड। यू शुड हैव ईटन इट। आई डिड नॉट कम टू देहरादून। आई डिड नॉट। गो टू नहीं आएगा।
I did not eat rice. She did not cook the food. I did not go to the temple. I did not sing a song. I did not come back. He did not reach to Amritsar. He did not give his ice cream to the child. I did not play the football. I did too much dance on Christmas. I did not play music. I did not attend the history lecture. She did not attend the lecture today. She did not attend the lecture. I did not bunk the English class. Nancy did not come to my home. She did not go to the market. She did not go to attend the meeting. She did not go to attend the meeting. I did not fly a kite yesterday. I did not attend the chemistry lecture. They did not teach Rahul. I did not run in the market. She did not come to the hotel with friends. I did not attend the physics lecture. She did not do well in mathematics. I did not play football. Okay, when it is going to be interrogative, then फिर क्या आएगा? Did plus subject. Did you know me? Did you know me? Did he eat the food? वही आएगा did plus subject plus verb का first form. Did I call you? Did I meet you? Did he give his Did she come to your house? Did I read the book? Did you listen the song? Did she reach to Amritsar? Did we eat pizza yesterday? Did you dance? Did they see any ghost there? Did you love me? Loves me नहीं आएगा. Did you ever love me? Did she ignore you? Did she eat the food? बिल्कुल ठीक है भाई, मेरे बच्चे तो सियाने हो गए. Did you clean the home? Did he confess his mistake?
Did I give a book? Did you take the tea? Did you go to Delhi? वैसे अच्छा ऐसा था did you went but grammatically it is incorrect. Did she go to Khambra church on 30? अभी on 31st लिख दे 31st अभी आनी नहीं तो ये past क्या आएगा? Will she आएगा. Will she go to Khambra church on 31st because ये future है. Did she apologize? Did you tell me a lie? Did they blame the poor boy? Did you help the poor person? Did you attend the last lecture? Did they met with her parents? Hmm. Okay, done. I think आपको समझ आ गया है. Did he climb? Did she cook the food? Cooked नहीं आएगा. Okay, अगर negative interrogative बनाने हो तो Did I listen your lecture? Negative interrogative के लिए grammatical rule लिखो. First request, ma'am. First request. ये क्या मुझे समझ नहीं आ रही है. She did not go to the market. One, ma'am. हाँ जी रिक्वेस्ट बोलो जी. मैं कह रही हूँ नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाओ. डिड ही नॉट गो टू द स्टोर ये सही है. सब्जेक्ट डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. 30th टू फर्स्ट. 30th 31st एंड फर्स्ट मतलब 3 दिन है ना. कल से क्लासेस नहीं लेनी है आप लोगों को. यही बात है ज्योतिका. बाकी सारे क्लासेस हो रही हैं. विल एवरी क्लास go on and on or not, or you are taking leave from everyone. And what the teachers are saying, no issues at all Jyotika. Once you call me after the class, if really you people need it, then there is no issue. You should be having a good ending of 2020 and a good start of 2021. I will just bless you all that God gives you all what you want in life, and you should be always happy and healthy.
It's okay, we will not be having the class. No issues at all. कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो गुड ऑफ यू ज्योतिका. ज्योतिका आप हो कहाँ से? ओके. ठीक है ज्योतिका. आर यू स्टिल इन द चर्च? ओके. ठीक है, we will be having off for the next 3 days. I want you people to enjoy. Okay. Shivam will miss me a lot. Is it Shivam? Nobody else will miss me. कोई बात नहीं बेटा, आप करो अपना. Like you, I know about your religion and your thoughts. Just go ahead and we will be having the class on second. No problem. Why you all will miss me? I know that you invited me, Jyotika. I know. Rather, you have invited everyone. But I'm asking why you people will miss me. Oh my god, I'm so pretty. Who else is pretty who takes your class? बस है ना, बटरिंग शुरू हो जाती है. शिवम तो पूरी बटरिंग करता है. कहते हैं इनको लगता है कि एक बार मिलके देख लें कि सच में प्रिटी है मैम या नहीं. ओ माय गॉड, ग्रेट यू स्टूडेंट्स आर. ओके. आज मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था और उसमें उसने बोला कि मैम ये वाला टॉपिक जो है क्लास में करवा दो. आज के लेक्चर में मैं ये क्या करने लगी हूँ, पहले ये जो टॉपिक है इसको डालने लगी हूँ ग्रुप में. ठीक है. एंड आई वांट कि मेरे को वो बच्चा बताए कि ये मैसेज किसने मुझे ड्रॉप किया था. फिर हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं. यू पीपल ऑल आर हैविंग इन योर ग्रुप्स. प्लीज गो एंड सी टू दैट. सारा. सारा, वेयर आर यू फ्रॉम? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. आपने तो वो करे है ना, एक्टिव पैसिव एंड नरेशन. वो ग्रामर के बाद करवाती हूँ क्योंकि कुछ लोग नए हैं, उन्होंने तो ग्रामर भी नहीं की. हाँ जी. सारा, आपने ये मैसेज किया था मुझे, वेयर आर यू फ्रॉम?
वेरी नाइस। तुम भी अर्थ से ही हो, तुम कहीं कौन हो, कहीं और से हो। फाजिल खां। ओके सारा, व्हाट यू हैव डिड। हाँ जी पूछिए। हाय गाइस। मैं जलंधर से हूँ। आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स दैट आई एम फ्रॉम जलंधर एंड आई थिंक एवरीवन नोज दैट नाउ। नियर फुटबॉल चौक। क्या हुआ, आपको क्या लगा मैं कहाँ से हूँ? फॉरेन। ओ माय गॉड। ओके पहले हम ये टॉपिक देखें। लेट मी रीड फॉर यू ऑल। कहते अ स्कूल वैन कैरिंग 20 चिल्ड्रंस। ये क्या, किस बात पे यस हो रही है? नहीं हूं मैं फॉरेन से, लगती हूँ मैं फॉरेन से हूँ। मजाक हो रहा है क्या? ओके। A school van carrying 20 children hits a passenger bus en route to the school. Hits a passenger bus इन रूट टू द स्कूल, मतलब एक स्कूल वैन ने क्या करा, पैसेंजर्स को हिट किया जो कि अपने रास्ते पे थे, जब वो वैन जो थी वो स्कूल जा रही थी। तो वो मतलब 3 वुमेन्स इन द पैसेंजर बस एंड 4 चिल्ड्रन इन द स्कूल वैन डाई ऑन द स्पॉट। और इस तरह से क्या हुआ कि पैसेंजर बस में मारी थी ड्राइवर, स्कूल वैन ड्राइवर ने, और 3 लेडीज वहां पे मर गई और 4 बच्चे स्कूल वैन में ही मर गए। इट वॉज द फॉल्ट ऑफ द ड्राइवर ऑफ द स्कूल वैन। तो ऑब्वियसली उसने हिट किया था तो उसकी गलती थी। हु जंप्ड द सिग्नल एंड हिट द पैसेंजर बस। और जिसने क्या किया, सिग्नल को जंप किया, मींस ऑब्वियसली रेड होगा, और उसने क्या करा, सिग्नल को जंप कर दिया और जाके पैसेंजर बस के बीच में मारा। द ड्राइवर ऑफ द स्कूल वैन एस्केप्स अनहर्ट। मतलब उसको क्या करा, उसने स्कूल बस के ड्राइवर ने क्या करा, वो तो अपने आप को छुड़ा के भाग गया फटाफट के, और वो उसने क्या करा, एक्सीडेंट स्पॉट से बाहर निकल आया। द गवर्नमेंट अनाउंसेस कैश रिलीफ टू ऑल द विक्टिम्स डेड एंड इंजर्ड। गवर्नमेंट ने क्या करा कि कैश जो था, कैश अवार्ड मतलब कैश प्राइज, या यू कैन से कैश रिलीफ ही होता है, एक हेल्प की तौर पे अनाउंस कर दिया एट द टाइम। सेम टाइम द गवर्नमेंट कैंसल्स रिकॉग्निशन टू द स्कूल टू विच द वैन बिलोंग्स, है ना, मतलब स्कूल को रिकॉग्नाइज जहां से था वो कैंसिल करवा दिया। द पुलिस ऑन द कंप्लेंट फ्रॉम द एग्राइव्ड पेरेंट्स अरेस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। इवन जो मतलब पुलिस थी उसने प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लिया क्योंकि पेरेंट्स ये बोल रहे थे। एंड सर्च पार्टी इज सेंट टू अरेस्ट द एब्सकॉर्डिंग ड्राइवर। और ड्राइवर को भी क्या किया, मतलब सर्च पे लगा दिया कि उसको भी ढूंढो और जेल में डालो। आ गया समझ? एक स्कूल बस ने हिट करा पैसेंजर बस को, किस तरह हिट करा कि उसने जो थी लाइट्स को जंप किया और उसको हिट कर दिया। जब हिट किया तो 4 बच्चे जो थे वो स्कूल बस में मर गए और 3 पैसेंजर बस में लेडीज मर गई। और जो ड्राइवर था खुद तो क्या करा, खिड़की से बाहर निकल गया। किस तरह, मतलब अपनी जान बचा के बाहर निकल गया। और इस कारण क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी उसने जो भी लोग इंजर्ड हुए थे या विक्टिम्स थे जो मर गए थे उनको कुछ ना कुछ कैश दिया, एज अ फॉर्म ऑफ हेल्प अनाउंस कर दिया। स्कूल को क्या था, उसकी रिकॉग्निशन को कैंसिल कर दिया। पेरेंट्स के कहने पे प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लिया, और ड्राइवर जो था उसको ढूंढने में पुलिस लग गई। ये थी कहानी। अब इसके आगे है, इज द गवर्नमेंट राइट इन इट्स एक्शन मेंशन इन द केस स्टडी। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट राइट है? जो गवर्नमेंट कर सकती थी क्या उसने किया?
क्या लगता है मुझे, बताओ बच्चों। इसके अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी गवर्नमेंट। हम्म। अगर हम कहते हैं यस द गवर्नमेंट इज राइट, हाउ द गवर्नमेंट इज राइट, यू शुड बी टेलिंग कि गवर्नमेंट ने क्या ऐसा किया जो आपको लगता है कि बिल्कुल सही है। यू हैव टू इनलिस्ट दैट इन 200 वर्ड्स। टेल मी how you felt the government is right. List your points now. ठीक है। बिल्कुल, government has punished all the people who did the mistake. Government arrested the principal because he hasn't appointed the trained staff. Injured persons are being helped by providing the relief fund. True, बिल्कुल बिल्कुल सही है। एनी अदर पॉइंट? शिवम कहाँ गया, अब नहीं कुछ बोल रहा। Oh, government announced a financial help to the victims. Moreover, government also arrested the principal. वो तो मुझे पता चल ही गया, टाइपिंग कर रहे थे। पर जब तुम्हारा मैसेज नहीं ना आता, मुझे लगता है पता नहीं कहाँ चला गया। मीन्स फॉर मी क्लासेस, principal is being arrested because principal is responsible for everything. He should have arrested the right staff, the trained staff. अगर जो अथॉरिटी है, वो जो मेन बंदा है। हाँ, then you can disagree. You can say that I agree to the situation, but those who disagree is because of these reasons. अगर ऐसा होगा, रिकॉग्निशन को खराब किया जाएगा, या उसके कारण क्या होगा, उसके कारण ये होगा कि बाकी बच्चों का फ्यूचर जो है वो स्पॉइल हो जाएगा। एनी अदर पॉइंट जिनको लगता है गवर्नमेंट ने गलत किया? एक ही गवर्नमेंट की गलती है कि उसने स्कूल प्रिंसिपल को अरेस्ट किया, अदरवाइज कोई गलती नहीं है। गवर्नमेंट डिड एवरीथिंग गुड। डू यू पीपल थिंक द सेम? So you can say that yes, government did everything right, but there is some problem with the government actions, and that is with the arresting of the school principal. और उसको explain कर दो। Got it? You have many points, and now what you need to do is you just need to write it down. Do you think it? Okay, next question is it? Is it right to arrest the school principal? Explain why. अगर आपको लगता है कि ये राइट है स्कूल प्रिंसिपल को करना, तो आप यही बता सकते हो कि वो अथॉरिटी है और उसका क्या है, दैट इज द हु इज द वन जो कि हर जगह पे स्टाफ अपॉइंट कर रहा है, और अगर वो अपॉइंट कर रहा है, अपॉइंट करना चाहिए बिकॉज उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज ऑफ द होल स्कूल विद द नंबर ऑफ पीपल, सो ही कैन नॉट इग्नोर लिटिल थिंग्स ऑल्सो। What are the important elements of emotional intelligence? Explain why the importance of emotional intelligence
इन फैमिली लाइफ? इमोशनल इंटेलिजेंस, ये क्वेश्चन है जो कि आपको देखना पड़ेगा। किसी के पास इसके लिए रिव्यूज है? वेरी नाइस। Shivam, you have different views and you are explaining it well. You can explain in this way also. Very good, my students, because they have pointed out the point कि उसने उसने क्या करा है, उसने लाइट को जंप करा है। अगर वो ऐसा ना करता तो फिर ऐसा ना होता। और जो लास्ट क्वेश्चन है उसको बताओ, उसके उसके दिमाग में क्या आता है, पॉइंट आपके। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? ग्रुप में है क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, रिपीट मैम। कहते इमोशनल इंटेलिजेंस के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से हैं? और उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में? आप इमोशनल तो हो, वो फैमिली मेंबर्स के साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट तो होती है, बट इमोशनली यू शुड बी इंटेलिजेंट ऑल्सो। अगर आप ऐसा होता है, आप इंटेलिजेंटली वर्क करते हो तो आप राइट डिसीजन ले सकते हो। अगर आप इमोशनली नहीं मतलब इंटेलिजेंट नहीं हो, तो यू कैन ऑल्सो लाइक समवेयर फॉल इन द you can say problems, in that confusions and all that. Hmm. Any other point? Obviously you need to be emotionally, you need to be have emotional attachment, but in and all you should see and look every factor which is going around. Yes, lecture is getting recorded and we are on the verge to finish the lecture. So have you been cleared with this topic? Okay, very nice.
नहीं, विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मतलब हाँ ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही है, बट आपको जनरलाइज्ड लिखना है इसके लिए। फॉर इंस्टेंस डाल के आप वही सारा जो पॉइंट्स है उसको पोर्ट्रे कर सकते हो, बट स्टिल यू नीड टू बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। It's okay, Jyotika, no issues at all, because I come to know that you people are going to the church, so you need holidays for 3 days. It's okay. Happy New Year. Take care of you. You can say even plan out your next year, and all the very best. Thank you. Same to you. God bless you all. बिल्कुल जी, साल बाद मिलेंगे और शिवम बहुत मिस करने वाला है। ओके जी, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट जी। बाय।